अब तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। ये शब्द हैं गैंगस्टर गोल्डी बराड के और निशाने पर है उसका पुराना दोस्त, जो अब दोस्त से उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, लॉरेंस बिश्नोई। दो गैंग और दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे, और इस दुश्मनी को हवा दी चंडीगढ़ में हुई इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या ने, जो गोल्डी बराड का जिगरी था। पैरी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो गोल्डी बराड का बताया जा रहा है, जिसमें वो लॉरेंस को सीधे धमकाते हुए कह रहा है कि लॉरेंस अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। तो चलिए पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ खाती है, तेरा अंत शुरू है। आधी पुट्ठी गिनती शुरू कर ले। हालांकि पैरी की हत्या के एक दिन बाद लॉरेंस के राइवल गोल्डी बराड का सिर्फ यही एक ऑडियो वायरल नहीं हुआ था। इसके बाद एक और ऑडियो क्लिप सामने आई। इन क्लिप्स में लॉरेंस को मारने की धमकी दी गई है ताकि पैरी की मौत का बदला लिया जा सके। इससे गैंग वॉर का डर और बढ़ गया है। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, आपको वो दूसरी क्लिप भी सुना देते हैं। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਰੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਪੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਗਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚਗਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪੈਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਸੂਰ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੈਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੀ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੀਪੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੀਪਾ ਜਿੱਦੇ ਮਰਿਆ ਲਾਰੈਂਸ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਨੰਦਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸੀਪੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਰਮ कर शर्म। इन ऑडियोज के वायरल होने के बाद पुलिस इन ऑडियो की सच्चाई का पता लगा रही है, जिनमें गोल्डी लॉरेंस को बदले में हत्या की धमकी देता सुनाई दे रहा है। वहीं पैरी के परिवार का कहना है कि उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता था। पैरी के परिजनों का कहना है कि वो अपराध की दुनिया को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, जिससे लॉरेंस गैंग नाराज था। परिवार के मुताबिक पैरी के खिलाफ दर्ज 12 मामलों में से 8 में वो बरी हो चुका था। 13 नवंबर को उसकी शादी हुई थी और वो परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहता था। एक रिश्तेदार ने कहा कि हम संपन्न परिवार हैं, हमें उसके अपराध से कमाए पैसे की जरूरत नहीं थी। पैरी के भाई हरनीत सिंह पंजाब पुलिस में ASI हैं। उन्होंने कहा कि लॉरेंस अक्सर हमारे घर आता था। मेरी माँ उसे बेटे की तरह खाना खिलाती थी। लॉरेंस ने माँ के प्यार का बदला पैरी को मारकर लिया। पैरी के रिश्तेदारों ने बताया कि हत्या वाले दिन पैरी अपनी पत्नी को कहीं छोड़ने गया था। जब वो वापस आया तो उसे एक दोस्त का फोन आया और वो फिर घर से निकल गया। वो सेक्टर 26 के एक क्लब में दोस्तों से मिला, तभी उसे लॉरेंस का फोन आया। लॉरेंस ने उसे पास के टिम्बर मार्केट में एक निजी मामले पर बात करने के लिए बुलाया और कहा कि उसके कुछ साथी उसके साथ बात करेंगे। जब पैरी वहां पहुंचा तो उसे गोली मार दी गई। ये बात वायरल हो रही ऑडियो क्लिप्स में कही गई बातों से मेल खाती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक 72 घंटों के भीतर
अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों में एक बड़े खूनी खेल की आशंका को मजबूत कर दिया है। इन घटनाओं की कड़ी रविवार 30 नवंबर से शुरू होती है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी द्वारा भारत में रिक्रूट किए गए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश को नाकाम किया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई तब हुई जब स्पेशल सेल भट्टी के भारत में फैले नेटवर्क की जांच कर रही थी। स्पेशल सेल इसी सिलसिले में सोमवार 1 दिसंबर को सेल के इनपुट पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने शहजाद भट्टी के 2 और रिक्रूट आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनके पास से भी चीनी हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद हुई और फिर चंडीगढ़ के टिम्बर मार्केट में गोल्डी के करीबी की हत्या कर दी गई। पोस्ट के जरिए उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। पोस्ट में कहा गया कि पेरी चंडीगढ़ के क्लबों से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नाम लेकर पैसे वसूलता था। क्लब मालिकों को चेतावनी दी गई कि पेरी या उसके ग्रुप का साथ देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा और जरूरत पड़ी तो गैंग के सदस्य जेलों में घुसकर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्र इन तीनों घटनाओं को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई इस समय कई फ्रंट पर खूनी गैंग वॉर झेल रहा है। यानी कुल मिलाकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चल रहे इस खूनी खेल की आहट अब और तेज हो चुकी है। एक के बाद एक वायरल ऑडियो, खुली धमकियां और खुलेआम ली जा रही हत्याओं की जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर साफ इशारा करते हैं कि गैंग वॉर सिर्फ पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि नए पावर बैलेंस की लड़ाई भी बन चुकी है। पेरी की मौत, आईएसआई लिंक से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी और गैंग्स की ये खुली जंग, इन तीनों घटनाओं ने एक बात साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है और इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां एकदम अलर्ट पर हैं। दोनों गुटों के बीच पिछले कई सालों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और अब ये जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। पुलिस सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आम जनता इस गैंग वॉर की हर लहर को डर के साथ महसूस कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, गोल्डी बराड़ विदेश में छिपा बैठा है, लेकिन दोनों के गिरोह जमीन पर आमने सामने भिड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस गैंग वॉर को सड़कों पर रक्तपात में बदलने से पहले कैसे रोका जाए। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मिनाज है, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र पे सुन रहे हैं।